Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. We learn about how the cyberspace involved, how the cyber crimes evolved and why we need cyber securities or to prevent some cyber crimes or illegal activities, we need some laws to prevent that activities or to handle that activities. So throughout the subjects we have shown some different techniques or algorithms or the acts which is useful for the general public to handle this kind of the acts. In particular session, in this particular chapter, we are studying about the Indian Act 2000, which is the first act introduced by the Indian government to handle such kind of the criminal activities which is done by the cyberspace. So in previous some sessions, we study about the different techniques, digital signatures, electronic signatures, and some algorithms to handle this type of crime with technology. And we also learn about the private key and public key cryptography and some of algorithm like Diffie-Hellman algorithm, and using that algorithm and public key and private key cryptography, how we can secure our file data or image data which we are transferring from one place to the another place. And using this techniques and this method, we can secure our data, we can prevent hacking from another people. So in this particular session, we are going to learn about the electronic governance or e-governance. It is also a part of Indian Act 2000 कि जो एक्ट है आईटी एक्ट 2000 उसी का एक सब पार्ट है दैट ई गवर्नेंस एंड हाउ ई गवर्नेंस इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट और a businessman or a public, that is the portion of this. And in Indian Act 2000, there are 94 different type of the sections. According to the crime or according to the requirement, we can use this section and we can take the actions. So वो 94 सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस है जो ई गवर्नेंस को अलोकेट किए गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस इज नथिंग बट एन व्हेन government agencies use information and communication technologies to transform relations with the citizens, businesses and the other गवर्नमेंट एजेंसीज. सो उनके लिए जब उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती है या गवर्नमेंट और किसी बिजनेस पर्सन के बीच में कोई डील होती है, तो एट दैट टाइम किस टाइप का लॉ यूज किया जाएगा, किस टाइप का एक्शन लेना चाहिए कि उनको कोई साइबर क्राइम के रिलेटेड कोई इशू फेस ना करना पड़े. तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ई गवर्नेंस का यूज होता है विच इज कम अंडर द सेक्शन 4 टू सेक्शन 8 कि ई गवर्नेंस को आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 4 टू सेक्शन 10 के बीच में जगह दी गई है और उसके ये सेक्शंस बनाए हैं कि अगर ई गवर्नेंस में कोई छेड़खानी होती है, कोई प्रॉब्लम अकर होती है, if some issues occur over there, so according to the section we can face that problem or we can prevent that problem. So in section 4, in section 4 उन्होंने लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं डे टू डे, उनको हैंडल कैसे करना है उनके बारे में एक्शंस लिए गए कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले हमारे पेपर बेस्ड होते थे, राइट, कि हमारा जो डेटा था, नो डाउट अभी भी होता है, बट कंपेयर टू द लास्ट 25 इयर्स की जो टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है उसके बेस पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक यूज काफी बढ़ गया है. तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो जनरेट हो रहे दैट इज क्वाइट इन ह्यूज इन नंबर. सो to handle that electronic records, to handle that electronic forms and to secure that data, we need some legal recognitions towards that electronic records. So that is comes under the section 4. After that जो legal recognitions है digital signatures का, we previously study what is digital signatures and how it is helpful to us. तो वो जो digital signatures का legal recognition है that is come under the section 5 ऑफ आईटी एक्ट 2000. एंड उसमें जो इन्वॉल्व किया है कि उसको कंपेयर किया है कि जो हमारे हैंड रिटन सिग्नेचर्स है और हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर्स है उसमें कैसे हमें बेनिफिट्स मिल सकता है. एंड इफ ऑथेंटिकेशन
of such digital signatures will be ensured by means of the digital signature affixed in such a manner as the central government prescribes. कि again ये जो digital signature का concept है, that is for our security purposes. So there are some government all involved in that. So there is some affixed or pre-described positions or points which should be followed by everyone, which is defined by the central government. So हमें वो follow करना है and we have to secure our data. So वो पूरा portion section 5 के अंदर आता है. Then section 6 of e-governance. So that aims to eliminate the red tapeism and promote the use of electronic records and digital signatures in government in its agencies. So again, it is useful for the government as well as other agencies as well as the regular people and another businessmen persons. So उनके according उनका अलग से section है. Then there is in section 7 which allows the retention of the electronic records into the paper based records to fulfill the legal requirement of the retention of the record. So there are so many different sections और sections के according again वहाँ पे define किया गया है कि आपको किस तरीके की action लेनी चाहिए. So we studied about this different type of the sections. So अभी आपको question होगा कि what is e-governance. Okay, so e-governance is the application of information technology to the process of government functioning to bring about smart, moral, accountable, responsive, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस. मीन्स बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आप जो भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जिसके यूज के थ्रू आप अपना वर्क स्मार्टली कर पाओगे, रिड्यूसिव टाइम में कर पाओगे और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा एंड एज वेल एज दैट इज ट्रांसपेरेंट. अगर कोई डील हुए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सम बिजनेस पर्सन, तो उन दोनों के बीच में उन्होंने कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज किया है या कोई टेक्नोलॉजी का यूज किया. सो यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी उसका जो आउटपुट आएगा उन दोनों के बीच के डील का, उन दोनों को स्मार्टली उसमें वर्क होना चाहिए. देन उसका जो रिस्पॉन्स है कि अगर वो बिजनेसमैन ने वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन नॉर्मल पीपल के बीच में पुट अप किया है टू यूज दैट, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा दैट शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड एज वेल एज वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अगर जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना इजीली होगा उसको यूज करना एंड उसको एक्सेस करना. सो ऑब्वियसली इस टाइप के कुछ ई गवर्नेंस systems or e-governance applications already existed in a market because it's 2021. जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये बहुत बड़ी बात थी, बट nowadays everything is works on our fingers. like आप लैपटॉप यूज करते हो, आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो, so कहीं ना कहीं आप ई गवर्नेंस का यूज कर रहे हो इन इजीली डे टू डे लाइफ को इजी करने के लिए. सो इसके इजी एग्जांपल्स है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग आईआरसीटीसी और रेड बस और जीएसआरटीसी कि जिसके थ्रू आप अभी अपने टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हो. सो ये क्या हुआ, ये जो जीएसआरटीसी है, आईआरसीटीसी है, दैट आर द एप्लीकेशंस व्हिच इज implanted by the government because that is the portion of the government. so वो जो चीजें हैंडल होती है that is the e-governance कि IRCTC है या GSRTC है, so that is the e-governance. and उसको हम कितना effectively and efficiently use करते हैं, उसका use कर रहे हैं और फिर भी हमें कोई problem नहीं है, so that is the good e-governance systems, we can say that. ट्रेडिशनली व्हाट हैपन, ट्रेडिशनली क्या होता था कि हमारे कोई पेपर्स है या बुक्स है, राइट, उनको हम प्रिंटेड गैजेट्स के थ्रू यूज करते थे.
ओके। देन उसको पब्लिश करने के लिए कुछ रूल्स होते थे, उसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस भी होती थी। सो वो सारी चीजें हमने उसको इम्प्रोवाइज करके क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कन्वर्ट किया है। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस थिंग इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इट इज easy to recognize, it is easy to use, it is also easy to handle. And after the publishing that electronic gadgets, the rules, the regulations, the notifications are also easy to understand, and that is also easy to publish कि अभी जो कोई एप्लीकेशन है उसमें कोई नया रूल आया है या उसमें कोई अपडेट आया है, सो वो क्या होगा, पर्टिकुलर यूजर को उसका जो पब्लिशिंग है, उसका जो अपडेट है, उसकी वो डिटेल भेजते हैं, उसके साथ वो वहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये अपडेट कर रहे हैं। अगर आपको वो अपडेट चाहिए देन एंड देन यू अपडेट इट, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विथ योर करंट वर्जन। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसकी जो नोटिफिकेशन है, ये क्या हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई कि अगर यूजर को वो इंस्टॉल करना है या यूजर को वो अपडेट करना है, देन एंड देन ही और शी कैन डू दैट। उसमें कोई ऐसे फोर्सफुली नहीं कि अपने आप ही वो अपडेट होगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ई गवर्नेंस का जो हम यूज कर रहे हैं। And using this type of the different facilities, infrastructure facilities, which is quite efficient and quite easy to use, we are using this type of the technologies. So अभी ये जो सारी चीजें है, ई गवर्नेंस, डिजिटल सिग्नेचर, उन सारी चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक पोर्शन होता है, दैट उनके पास कुछ ऐसी पावर्स है कि वो कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाता है कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो, अगर आप ई गवर्नेंस का यूज कर रहे हो, आप इंटरलिया का यूज कर रहे हो, या कोई अदर फॉर्मेट का यूज कर रहे हो जिसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज हुआ है और वो अफेक्ट कर रहा है, सो फॉर दैट दे आर मेकिंग सम पर्टिकुलर रूल्स, some particular laws कि you have to follow this, otherwise your privacy, your security will be in danger. So for that central government also take some actions. And recently अगर देखो, so they have given the example of IRCTC कि recently implementing the e-governance provisions in the Indian Railway has started the internet reservation facilities, right? Ki through using the credit cards. Sorry. Using the credit cards, you can make your reservations on railway websites. Means कि IRCTC का ऑनलाइन रिजर्वेशन आप कर सकते हो। सो दैट इज द पार्ट ऑफ एन ई गवर्नेंस प्रोविजन, एंड इसका काफी इजीली यूज होता है, नो डाउट इट इज यूज्ड एवरीवेयर राइट नाउ। अगर आपको बस बुक करना है, आपको रेलवे बुक करना है, आपको फ्लाइट बुक करना है, अभी हर जगह ई गवर्नेंस सिस्टम आ गया है। एंड देयर आर आल्सो सम बेनिफिट्स ऑफ दिस कि आपको घर बैठे बैठे आपका टिकट मिल जाएगा, आपकी टाइमिंग पे आप उसको सेट कर सकते हो। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। What are the other benefits of the e-governance? The first one is cost reductions. Cost reduction in the sense कि जैसे अभी IRCTC का एग्जांपल था, so what happened, IRCTC का अगर वेबसाइट नहीं होता, so किसी को प्री रिजर्वेशंस करना है कि किसी को एक वीक के बाद कहीं जाना है लॉन्ग रूट के लिए, बट उसको क्या होगा, प्री रिजर्वेशंस करना पड़ेगा। so उसको वहां पे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, उसकी टिकट बुक करवानी पड़ेगी, एंड देन ही कैन और शी कैन प्रोसीड फर्दर। क्या होगा, आने जाने का कॉस्ट लगेगा, राइट। दिस इज द वन स्मॉल एग्जांपल। सो इसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। मींस हमारे पास अगर हमारे हाथ में उसका एप्लीकेशन है, हम इजीली वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, हमारा सोर्स और हमारा डेस्टिनेशन एंटर करेंगे, हमारा डेट चूज करेंगे, एंड विल बुक अवर टिकट्स अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। सो कॉस्ट रिडक्शन आ जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ, अभी रेवेन्यू ग्रोथ कैसे होगा कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, इजीली पीपल वहां से बैठ के इसको यूज कर सकते हैं, तो उसका ग्रोथ अपने आप इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी इजी करना है कि एक पर्सन घर पे बैठ के वो एप्लीकेशन यूज करके अपना इतना सिंपली टिकट बुक कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो किसी और को भी बोलेगा, तो वैसे वैसे लोगों में स्प्रेड होगा और वो चीज अपने आप रेवेन्यू ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगी।
So benefits of e-governance is कि वो cost reduction देगा, revenue growth देगा, less corruption. Okay. There is a transparency between this conversion. जो आपकी टिकट बुकिंग का कन्वर्जन है वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लेस करप्शन आ जाएगा. एंड अभी तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड्स मिलते हैं दैट विल बी यूज, कि करंटली भी यूज हो सकता है या तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जर्नी ट्रैवल करो तभी भी यूज हो सकता है. सो लेस करप्शन इज देयर. देन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने बोला कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ये अभी एप्लीकेशन है दैट इज डायरेक्टली कनेक्ट यू विद बस ऑपरेटर, और उनकी जो सीट है वो आपने रिजर्व कर ली, तो इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो वो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है. ग्रेटर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन्स कि आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाके वहां पे टिकट बुक नहीं करवाना है. दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ टिकट बुकिंग. ये जो टर्म्स है, बेनिफिट्स है कि बेटर कन्वीनियंस, कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू ग्रोथ, लेस करप्शन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन और ई गवर्नमेंट वेबसाइट की कहाँ पे आप उसका बेनिफिशियली यूज कर रहे हो, क्योंकि हर एक सेक्टर में ये यूज हो सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें टिकट बुकिंग के लिए ही चाहिए तो हम वहीं पे ये यूज कर सकते हैं, राइट. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस. देन in starting we have shown the definition of e-governance कि वो कैसे यूज होता है. So e-governance is basically divided into the four parts, as you can see: G2C, G2G, G2B, and G2E. Means government to government, government to business, government to employees, and government to citizen. ये चार मेनली पोर्शंस है जिसमें हम इस ई गवर्नेंस को डिवाइड कर सकते हैं, उनका एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज की अलग रिक्वायरमेंट है. अभी सिटीजन है उनकी कुछ अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयज है उनके रिगार्डिंग अगर चीजें देखो तो वो अलग होगी, अभी कोई बिजनेस पर्सन है उनकी रिक्वायरमेंट देखो तो वो अलग होगी, एंड इवन गवर्नमेंट है तो उनकी भी रिक्वायरमेंट अलग होगी. सो जब गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C is coming in the picture, so what kind of the facilities e-governance provide? It provides e-services, applications, record request, tax remittances, public utility invoicing, e-payment, complaints and feedbacks, voting, public opinions, everything. E-governance supports everything which comes under सिटीजन रिक्वायरमेंट. ओके, कि कुछ एप्लीकेशंस उनको यूज करनी है, कुछ ई सर्विसेज यूज करनी है, देन कहीं पे कंप्लेन एंड फीडबैक है, सो उनके लिए भी हम ई गवर्नेंस का यूज कर सकते हैं. देन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है, सो कैसे कर सकते हैं, किस चीजों के लिए कर सकते हो, अटेंडेंस के लिए कर सकते हो, पॉलिसीज के लिए कर सकते हो, पेरोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्फ सर्विसिंग है, पेंशन है, हेल्थ केयर है, right? So e-governance or government, they can build up some applications like that and they provide these facilities कि सपोज हेल्थ केयर के रिगार्डिंग है कि उनको कुछ पॉलिसीज देनी है गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज को, सो दे कैन गो विद द हेल्थ केयर सेक्टर. देन उनकी जो सैलरीज है, so they can go with the payroll, right? So, these are the different services which is provided by the e-governance. Similar with government to government. अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में भी कुछ चीजें हमें फॉलो करनी है, लाइक बजट मैनेजमेंट है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, अप्रूवल्स है, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग्स है, notices and alerts and कुछ projects है. There are some major projects which is started by the government, so they also need the permission from other people or other governments, so they can carry forward it and bring some goodness to the nation. So for that they also follow this e-governance section and they also create benefits from that. Then government to business, so taxation है, licensing है, contracting and producement, subsidies,
and approvals. This all are comes under the government to business, and using these things we can take an advantages of the e-governance. Okay. So this is the overview about how e-governance work in each of the sectors, like with the citizen, with the employee, with the business, and with the government. There are so many different kind of the projects ongoing with e-governance, and जिसको अलग अलग follow भी किया जाता है. So there is the one project Vidya Vahini. Okay, Vidya Vahini project, it provides the opportunity for schools, teachers, and students all across the nation to express and share their creative and academic potential via the internet. Okay, mostly everyone heard about the Shiksha, like PNG Shiksha. It is a mission कि जिसमें there are some known well known companies come under this program, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स है, पेम्पर्स है, ओले है. सो दिस प्रोडक्ट दिस कंपनीज वर्क्स विद द शिक्षा, एंड जब भी आप उनकी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, सो सम पोर्शन of the amount will given to the shiksha, and shiksha work for those kind of the students जिनको अभी भी उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है इन द रूरल एरियाज और इन पीपल जिनको भी नॉलेज नहीं मिल रहा है. सो दिस इज द मिशन टू स्प्रेड द एजुकेशन, uniform quality of the education across the India to develop their creativity and problem solving. So there are a number of the other projects going on with the e-governance, and they are making good impact to make our country's future bright. राइट. सो अगेन ये जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम है वो नेशनल लेवल पे भी ई गवर्नेंस प्लान करता है, एंड दैट इज वर्क इन थ्री पार्ट्स. वन इज सेंट्रल एमएमपीज, सेकंड वन इज स्टेट एमएमपीज, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड एमएमपीज. तो लाइक सेंट्रल एमएमपीज है, सो उनके नीचे क्या क्या आएगा, बैंकिंग है, पासपोर्ट है, इमिग्रेशन है, ट्रैकिंग है, पेंशन है, ई ऑफिस है, पोस्ट है, ये सारी चीजें आएगी सेंट्रल एमएमपीज के अंडर. देन आएगी स्टेट एमएमपीज. सो स्टेट एमएमपीज के अंदर क्या चीज आएगी, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल टैक्सेस है, ई डिस्ट्रिक्ट है, म्यूनिसिपैलिटीज है, ई पंचायत है. राइट. द ई पंचायत कंसेप्ट इज new one. Then road transportation, so that all are come under the state MMPs, and the last one is integrated MMPs. So integrated MMPs works on the EBs, E-codes, e-producements, National E-Governance Service Delivery Gateway, and India Portal. So these are the things which is easily accessible, and you can say कि new future of the country कि e-governance का if we are using, so that will be very beneficial for us, for our country's people. And we everyone know about the concept of digital India, which is invented by our honorary prime minister. So वो जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है, दैट इज एन अगेन वहां पे हम ई गवर्नेंस का एफिशिएंटली यूज करके हम उसको एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं. तो ना जब आप ई गवर्नेंस का यूज करोगे, सो आप उसमें इंटरनेट यूज करोगे, अगेन साइबर स्पेस में इन्वॉल्व होगे. सो जब भी ये चीजें यूज करोगे, सो उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको बेटरमेंट की जरूरत है. सो एट दैट टाइम वी हैव टू take some laws and some things in our mind कि हमें उसको एक सही राह पे follow करना है. If you guys have any doubt regarding this, please put your questions in below comment box. Thank you so much.